Yes. So we are to do question number 11 now. चलो 11th question है the transverse displacement of a string clamped at both the ends is given by y. This, where x and y are in meter and t in second. Length of the string is 1.5 meter and mass is 3 into 10 raised to power minus 2 kg. Mass is 3 into 10 raised to power minus 2 kilogram. Does the function represent a traveling wave or a stationary wave? Yes, what do you think? Anyone? Is it a traveling wave equation or a stationary wave equation? Yes? If anyone knows, is it a traveling wave or a stationary wave? Yes, Samriddhi? Stationary. Stationary wave, because you can see it contains the product of sine and cosine functions. So it's a stationary wave. B part, interpret the wave as a superposition of two waves traveling in the opposite directions and what is wavelength, frequency and speed of each wave. तो स्टैंडिंग वेव तक पहुंचने के लिए हमने CD फॉर्मूला यूज किया था. अब टू गो बैक वी विल बी यूजिंग AB फॉर्मूला. ठीक है, लेट अस राइट 0.03 into 2. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं so that it becomes 2 sin A cos B. चलिए अब कौन बताएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin A cos B का फॉर्मूला कौन बताएगा क्या होता है? यस रिद्धि. मैम sin A plus B plus sin A minus B. हाँ, 2 sin A cos B. We are going to use sin A plus B plus sin A minus B. So let us apply it here. So 0.03 as such, sin A plus B ठीक है प्लस साइन A माइनस B. Now let us present it in the form 2 pi by sin 2 pi by lambda Vt minus x. उस फॉर्म में इसको अरेंज करते हैं मतलब as far as possible, then we can compare. So sin 2 pi by 3 कॉमन ले लो यहाँ. 2 pi by lambda फॉर्म होता है ना, तो it is convenient for us to take out 2 pi by 3 here. Then x plus 360 नहीं 2 pi हमने कॉमन ले लिया है ना, तो 60 रह गया यहाँ पे. 60 रह गया. 2 पाई हमने बाहर निकाल लिया. into 3 करेंगे 180 हो जाएगी. Is this correct? Can we write it? If we open the bracket, see whether we are getting back the same thing or not. हम इसको मल्टीप्लाई करें, sin 2 pi x by 3 आ गया. ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 2 pi by 3 into pi 180 60 and 60 into 2 is 125. ठीक है, वही चीज आ गई. So we can write in this form. Same way here also, sin 2 pi by 3 x minus 183. So now we can have a comparison. What is the amplitude of each wave? Amplitude of each wave. So you can see we have written standing wave
as a sum of two means separate traveling waves. As a superposition of two progressive waves, we have written the standing wave now. So it is composed of two independent progressive waves. We have proved that. Now we are to find amplitude of each wave. You can see amplitude of each wave is 0.03 meter. And if we compare it to the standard equation, A sine 2 pi by lambda Vt plus minus x, if we compare, then lambda is 3. Lambda कितना आ रहा है? Wavelength 3 meter. Right? And after that, coefficient of time 2 pi v by lambda. या वो तो बाहर ही है. V is equal to 180. Speed of the wave is 180 meter per second because यहाँ पे x y मीटर में है, टाइम सेकंड में. तो ये जो स्पीड आएगी हमारे पास, that will be in meter per second. ठीक है, have a look at this. So we have found wavelength and speed also of each wave. If we know the wavelength and speed, we can find frequency of the wave. Let's see what they are asking. What is the wavelength, frequency and speed of each wave? Yes, wavelength और frequency है हमारे पास, speed है हमारे पास. अब हम frequency भी calculate कर लेते हैं using v is equal to lambda nu. So nu is v by lambda. V is 180, lambda is 3. So frequency is 60 hertz. Frequency of each wave is same, 60 hertz. ठीक है. अब second part है determine the tension in the string. So we can use the speed of transverse waves in a string under root t by mu. ठीक है, mu is mass per unit length. mass और length दिए हुए हैं, mu निकाल लो पहले. mu will be mass per unit length, ये निकाल लीजिए. और tension, after squaring both sides, find tension in the string. So T is V square mu. And they are asking 12th question. For the wave on a string described in question 15.11, do all the points on the string oscillate with same frequency or phase? ये पूछा है. ठीक है, क्या वो same frequency या phase से oscillate कर रहे हैं? What do you say? Do all the points on the string oscillate with same frequency, phase or amplitude? What do you say? No. For example, amplitude, if we talk about, that is not same at all the points. There are some points called nodes where amplitude is 0. And there are some points called antinodes where the amplitude is maximum. So like this, it is varying. Okay, now come to question number 13. Given below are some wave functions. आपको बताना है कि कौन ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा स्टेशनरी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. So I'm going to write the wave functions here on the board. Y is equal to 2 cos 3x sin 10t. Y equal to 2 root x minus 3t. Y equal to 3 sin 5x minus 0.5t plus 4 cos 5x minus 0.5t. Y equal to cos x sin t plus cos 2x sin 2t. Yes, बताइए कौन सी ट्रैवलिंग वेव रिप्रेजेंट कर रही है and which wave function is representing standing wave and which is not representing neither traveling wave nor standing wave. चलिए कौन बताएगा फर्स्ट क्या है, किस टाइप ऑफ वेव्स की वेव की इक्वेशन है फर्स्ट? यस
यस बताइए। यस एनीवन? फर्स्ट जो है वो कौन सी वेव है? विच वेव इट इज रिप्रेजेंटिंग? 2 cos 3x sin 10t। यस जपन जोत बोलो। मैम स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी वेव, देखो ना इसमें कॉज और साइन का प्रोडक्ट है। सेकेंड वन, हु विल टेल द सेकेंड वन? यस काव्या। मैम ना ये ट्रैवलिंग है ना ही ये स्टेशनरी है। इट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग अ वेव बिकॉज इट्स नॉट अ हार्मोनिक वेव फंक्शन। साइन भी नहीं है इसमें, कोसाइन भी नहीं, ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है। यस व्हाट अबाउट द थर्ड वन? यस समृद्धि। मैम ये भी स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी वेव, यस बिकॉज इट्स अ सुपरपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ट्रैवलिंग वेव्स। तो इसका जब हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट एक स्टैंडिंग वेव ही आएगा। ओके अब इसके बाद फोर्थ वन क्या है? यस काव्या। हम स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स हैं वो भी दो हैं, ये भी स्टेशनरी वेव है, वो एक अलग से है। सो इट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू स्टेशनरी वेव्स रादर। हाँ और इन नटशेल हम इसको स्टेशनरी वेव ही बोलेंगे, बट यू कैन सी इट्स अ फर्दर अ सुपरपोजिशन ऑफ टू स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। Then question number 14. A wire stretched between two rigid supports vibrates in its fundamental mode with a frequency of 45 Hz. तो एक वायर है जिसको दो सपोर्ट्स में स्ट्रेच किया हुआ है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये कौन सी है? ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, वो वाली डेरिवेशन थी जो हमने स्टैंडिंग वेव्स की फर्स्ट डेरिवेशन की थी। Who will tell me the formula of fundamental frequency in standing transverse standing waves in a string? उसमें हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ रहा था, कौन बताएगा? यस व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? बच्चे याद होना चाहिए आपको, तभी न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे। यस रिद्धि, हाँ बताओ। मैम mu is equals to V by 2L. Yes, that is V by 2L. So fundamental frequency was V by 2L. And that is given 45 Hertz. The mass of the wire is 3.5 into 10 raised to power minus 2 kg. And linear mass density is given. यहां से आपके पास लेंथ आ जाएगी, लीनियर मास डेंसिटी से आपके पास लेंथ आ जाएगी, उसको आप यहां पुट करोगे, स्पीड ऑफ वेव आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से पहले मास पुट करके लेंथ निकाल लो। ठीक है, सो लेंथ है 7/8 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, जो भी आएगी। तो इसको आप पुट करिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में और स्पीड ऑफ वेव आ जाएगी आपके पास। ठीक है, देन वी विल गेट द स्पीड ऑफ वेव and tension in the string. So first part is what is the speed of transverse wave on the string, and B part tension in the string. फिर वही टेंशन वाला फॉर्मूला तो हम यूज कर ही रहे हैं, V is under root T by mu. So from here you can find tension later on. ठीक है, स्पीड निकाल लोगे तो उसके बाद टेंशन भी आ जाएगी।
So is this concept clear to you? Any doubt regarding this? You can ask. Okay, then question number 15. A meter long tube, मतलब कि length of meter है 1 meter. Length of rod is 1 meter. So this is question number 15. Length of rod is 1 meter, is open at one end with a movable piston at the other end. ठीक है? Shows resonance with a fixed frequency source, a tuning fork of frequency 340 hertz. When the tube length is 25.5 centimeter or 29.3 centimeter. क्योंकि इसका एक एंड क्लोज्ड है, एक ओपन है, दिस इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. ठीक है, तो ये रेजोनेंस दिखा रही है विद अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज व्हेन द ट्यूब लेंथ इज दिस और दिस. ठीक है, तो जब ट्यूब लेंथ इतनी होती है, मतलब कोई भी दो मोड्स हैं जहां पे इसकी रेजोनेंस हो जाती है विद द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज, तो हमें कोई दो मोड्स लेने पड़ेंगे. आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 2n-1 V/4L. ये तो हमारी nth फ्रीक्वेंसी थी. ठीक है, एक अगर हम ये ले लें, दूसरी कोई और ले लें, ऑड मल्टीपल है ना, तो आप दूसरा मल्टीपल 2n+1 ले लो, तो ये लेंथ आपकी L1 होगी, ये लेंथ आपकी L2 होगी. ठीक है, सो वी हैव टेकन एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग कंसेक्यूटिव मोड्स और उनकी लेंथ्स के लिए हमारी रेजोनेंस हो जाती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 340 हर्ट्ज. ठीक है, अब लेंथ्स भी आपको दी हुई हैं, इनको पुट करके सॉल्व करिए. आप n निकाल लो पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट n, देन वी आर सपोज टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो ये वही रेजोनेंस ट्यूब एपरेटस एक्सपेरिमेंट है that we use to find speed of sound in the air. तो speed of sound in air निकालनी है. ठीक है, वो तो बाद में निकालेंगे, पहले हमें n निकालना पड़ेगा कि कौन सा मोड है जिसकी रेजोनेंस हो रही है. So let us first of all equate these two. इनको इक्वेट करोगे तो ये कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा. लेंथ कितनी दी हुई है? 79.3 एंड 25.5. यहाँ 25.5 आएगा और यहाँ आएगा 79.3. अब कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दो इसको सॉल्व करने के लिए. 2n+1 + 2n-1 over 2n+1 minus 2n+1 is equal to 25.3 plus 79.3 over 25.5 minus 79.3. इसको सॉल्व करके n निकाल लीजिए. हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दिए. ठीक है, फाइंड n फ्रॉम हियर. बताइए n कितना आ रहा है. यस, n बताओ कितना है. चलिए इसको सॉल्व करके बताओ n कितना आ रहा है. यस, n निकाला किसी ने?
ये आ गया 4n और इधर ओवर 2 इज इक्वल टू 0.8 माइनस ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, n निकालो, फाइंड n। हाँ जी, कितना आया आंसर हिमांशु? 25.5. n निकालना है ना। Yes, ma'am. इसको सॉल्व कर, n इतना बड़ा थोड़ी हो सकता है। n तो कोई नंबर होगा ना कि कौन सा मोड है रेजोनेंस में। यस रिद्धि? मैम 0.97। 0.97 आ रहा है। और कोई कंफर्म करो कितना आ रहा है। हाँ जी बोलो। जपन? मैम यही आ रहा है 0.97। हाँ तो चलो फिर उसको 1 ले लेते हैं, इसका मतलब फर्स्ट मोड ही रेजोनेंस में होगा। सो 0.97 मतलब n इज अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। 340 इज 2 into 1 minus 1 v over 4l l1, ठीक है। यहां से स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी बस आपके पास, ठीक है। सो v इज 340 into 4 into 25.5। तो ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको पता है कितनी आनी चाहिए, बट उस टेम्परेचर पे कह रहे हैं तो थोड़ी डिफरेंट ही आएगी। तो सॉल्व करिए, देखो कितना आंसर है। So this will give you speed of sound at temperature of the experiment. चलो हो जाएगा। 16th देखें। A steel rod 100 centimeter long is clamped at its middle। एक स्टील रॉड है मतलब वायर है, तो ये वही लॉन्गी ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स वाला केस हो गया। is clamped at its middle. Fundamental frequency of longitudinal vibrations of the rod are given to be 2.53 kilohertz. What is the speed of sound in steel? तो हमें साउंड की स्पीड निकालनी है स्टील वायर में। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग, उसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ इज 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 2.53 किलोहर्ट्ज। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील, ये पूछा हुआ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? V/2L। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेंथ पुट करिए, V आ जाएगी आपके पास। लेंथ इज 1 ओनली, ठीक है, तो V आ जाएगी ट्वाइस ऑफ दिस। एंड यू नो स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज इन थाउजेंड्स, तो ये थाउजेंड्स के ऑर्डर का ही आ रहा है, ठीक वैल्यू आएगी हमारी। कितनी आ रही है? 5060। You know speed of sound is maximum in solids as compared to that in liquids or gases. Gases में सबसे कम है,
और स्टील में सॉलिड में 5000 से ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। अ पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया। Which harmonic mode of the pipe is resonantly excited by a 430 Hz source? हमें बताना है कि कौन सा मोड है रेजोनेंस में 430 हर्ट्ज के साथ, ठीक है। सो वही वैसे ही वही लॉजिक है हमारा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 2n-1 V/4n and it is in resonance with a source of 430 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस मीन्स मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है इसकी उसके साथ। तो अब यहां से n निकालना है आपको। गिवन है स्पीड ऑफ साउंड 340 और लेंथ भी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.2 हो गया आपका मीटर में। यहां से सॉल्व करके n कैलकुलेट करिए। सो यू विल गेट टू नो कौन सा मोड है जो इसके साथ रेजोनेंस में है। आफ्टर दैट उसका नेक्स्ट पार्ट भी है, विल द सेम सोर्स बी इन रेजोनेंस विद द पाइप इफ बोथ एंड्स आर ओपन। अगर दोनों एंड्स ओपन होते तो क्या फिर भी यही सोर्स रेजोनेंस में होता, यही वाले मोड के साथ रेजोनेंस में होता? तो चलिए पहले n निकालिए आप, देन वी विल डिसाइड, ठीक है। तो अब अगर ओपन ऑर्गन पाइप होती तो उसकी फ्रीक्वेंसी NV/2L वो होती 430 के इक्वल। तो फिर n निकालते हैं इसके लिए भी, 340 चलिए ये बताइए n कितना है, n बताओ कितना आ रहा है यहां से। पहले n कितना है और बाद में n कितना है? यहाँ पे n आपका होल नंबर नहीं आएगा। सो वी विल से नो, इट कैंट बी इन रेजोनेंस विद द सेम पाइप इफ इट वर ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स। जो सोर्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के साथ रेजोनेंस में है, एट द सेम टाइम इट कांट बी इन रेजोनेंस विद ओपन ऑर्गन पाइप। तो उधर हमारा आंसर नो ही आने वाला है। इधर n बताइए मुझे क्या आया था, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में n बताइए कितना आया था। यस हरी अप, वो n तो सॉल्व कर लिया होगा अभी तक आपने। टेल मी कितना आया n? यस बच्चे बोलो, सॉल्व कर रहे हो ना, साथ साथ सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? यस काव्या। मैम ओपन का n है 0.5 और दूसरे वाला है 1.01। 1.01 को 1 ले लो। अब 0.5 में प्रॉब्लम ये है कि 0.1 को 5 को हम राउंड ऑफ करके 1 भी नहीं ले सकते। सो दैट्स व्हाई वी विल से नो रेजोनेंस वोंट बी पॉसिबल विद ओपन ऑर्गन, ठीक है। अगर 0.5 से ज्यादा होता फिर तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, बट ये तो हाफ है, हाफ को हम 1 नहीं मान सकते, ठीक है। सो दैट इज द रीजन।